तमाम चुनौतियों के एक स्थायी समाधान की दिशा में एक कदम होगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले दिनों में होम स्टे की पॉलिसी हिंदुस्तान में एक बेहतरीन पॉलिसी के तौर पर जानी जाएगी और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके बाद भी आपके मन में यदि कोई शंका होगी तो आप निश्चित रूप से हमें मेल करेंगे और हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. I would now request Amit Kumar Singh, Area Director, Sterling, to please share his feedbacks with us. Hello. Yeah. Namaste. My name is Amit Kumar Singh and I represent Sterling Holidays. Vanakkam and Johar. I continue with you, Ms. Swati. I am from Jharkhand, from Jamshedpur. Worked length and breadth of the country and an opportunity to be with you all. Feeling nostalgic. खुद के घर में आकर और खुद के बारे में बताना. So, first of all, this is for everyone. We are on the eastern part of the country. The sun never sets at east. It always rises from east. The time has come where we are and what we are going to do. 2 years ago, we saw an opportunity, and as what member on the dais was speaking about, we have a hotel at Bokaro, known as Sterling City Center. Opportunities are immense. Trust me. Whole Jharkhand, while we are talking about, is based on 5B. When you talk about 5B, this is how we run our hotels. The Bhumi, Jharkhand. Bhavan, what we have over there, the buildings. Bhesh, the uniform. Bhojan, the food. And Bhajan, the song of Jharkhand. Everyone will have many opinions, we do also have. But a right opportunity is always there. And we are also building the team down there too, at Jharkhand. And opportunities we are exploring. Many parts of the Jharkhand, we evaluate it and we take it forward. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind words. Now, I shall request Captain Swadesh Kumar, Founder, President and Lifetime Honorary Patron for Adventure Tour Operators Association of India, to share his feedback in a brief, sir. Good afternoon. Unfortunately, sir, I'm not from Jharkhand. I wish I was. Everybody here has spoken about Jharkhand. I'm from Punjab, so I can speak in Punjabi if you wish. Trust me, it was very random, in fact. So, even we were not knowing that he is from Jharkhand, and I was not knowing that Mr. Amit is from Jharkhand. Never mind. Anyway, just the point of view I want to say. Sir, my name is Captain Swadesh Kumar. I must tell you also, many years ago, I used to fly aircrafts, and I flew from Bhubaneswar to Jamshedpur. That's the only connection with Jamshedpur. After that, I flew to Patna. But coming back to the work, I am very passionate about adventure tourism. I'm going to talk about adventure tourism only, nothing else. I wish make Jharkhand as the Eastern India adventure tourism hub. That's my wish today. I hope we succeed in this, because your state has got everything what you think of. For example, you can have waterfall circuit, tribal, wildlife, adventure circuit, and so forth. So I'm going to talk about only adventure tourism, which is the important aspect of it. Trekking, rock climbing,
camping, cycling trails, etc. are very important to do that. But what exactly is happening is that there is an absolutely no, for example, me, is the first time we heard about Jharkhand as a destination itself. I went to the computer and it's called where I can go to Jharkhand. Believe me, sir, none of the adventure tour operators or none of the tour operators have any circuit for Jharkhand. Nobody is selling Jharkhand. So I'm very happy today. I was very pleasantly surprised that we have this seminar. We can talk about it. There's so much happening, and I hope that we will have Jharkhand is one of our destinations, sir. What I would like is when you're making the adventure tourism policy, guidelines are very important. We need to have a guidelines of safety and sustainability and how do we run our business, so very crucial, very important. And similarly, also I would like to say that developing trekking routes is so crucial. We need to involve youngsters in finding routes because there is no knowledge about the trekking routes or trails at all. Then same is the biking trails. Same as we go for eco camping. You mentioned about eco camping, the beautiful I can see video, but nobody knows about it. We need to have information about the eco camping trails, and we need to have nature interpretation centers in all the wildlife areas. None of the interpretation centers are available. Encourage responsible ecotourism and private tour operators. And finally, what exactly is happening? All is great, sir. But what about marketing? Where the customer will come from? That is the main crucial question is, I would request the Jharkhand government to have a national, every year, a particular event in your state, inviting all these tourism meet or what we call IATO, ATOI, anybody can help you. And the last thing I would like to say, sir, is that I'm very connected with ATA, Adventure Travel Agent Tour Operator Association of the World. And we brought them to Madhya Pradesh in 2018, and I can help you to bring that international association to Jharkhand to promote adventure tourism in Jharkhand itself. I'll be very happy to help you, to assist you in promoting that. Because once you have international association coming to your state, the state will be known across the world. We can have 100, 150 adventure tour operators from across the world to come to Jharkhand to see exactly what is offered. With these words, sir, I once again thank you very much for inviting us. It's a great opportunity and hope we succeed in promoting Jharkhand as an adventure destination. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind words. It is my privilege now to invite Honorable Minister Shri Sudivya Kumar, Department of Tourism, Art, Culture, Sports and Youth Affairs, Government of Jharkhand, to kindly address the gathering, sir. इस लंबे सत्र में बड़े धैर्यपूर्वक सारी बातों को सुनने के लिए पहले आप सभी का बड़ा धन्यवाद, आभार। मेरे साथ मंच साझा कर रहे हमारे स्टीम्ड गेस्ट, चाहे वो इज माई ट्रिप के हों, आईटीसी के रिप्रेजेंटेटिव हों, और बड़ा सुखद आश्चर्य था कि जमशेदपुर की आवाज़ भी हम लोगों के साथ थी। हमारे डिपार्टमेंट के तमाम लोग जिन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम को सजाने में, रचने में अथक मेहनत की है, और हम भी अपने स्टेट कैपिटल से निकलकर आज इस नेशनल कैपिटल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चलकर आए। हम एक शब्द है जो हिंदी में सामान्य तौर पर बहुवचन के लिए बोला जाता है, लेकिन झारखंड की खासियत यह है कि वहाँ मैं को हम ही बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इस एक खूबसूरत प्रयास जिसकी प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा थी, और हमें भी यह लगता था कि जब देश के अन्य राज्य बड़ी गति से कदम ताल कर रहे हैं तो हमें भी अपनी गति थोड़ी सी बढ़ानी होगी। हम देश के पैमाने पर नवोदित राज्यों की सूची में हैं। 25 सालों का झारखंड है,
नवोदित राज्यों की सूची में रहने के साथ साथ हमारे साथ एक विशेषण भी जुड़ा हुआ है कि हम खनिज बहुल मिनरल रिच स्टेट हैं। प्रकृति ने, ईश्वर ने, नेचर ने मिनरल्स की सौगात तो हमें दी है, बहुतायत में है, लेकिन इस सौगात के साथ नेचर ने हमें प्राकृतिक सौंदर्य भी दिया है जो उससे भी ज्यादा बहुतायत में है। हम यह मानते हैं कि एक मिनरल रिच स्टेट जहां माइंस और मिनरल की बात अगर देश और दुनिया के पैमाने पर आए तो सबसे पहला नाम झारखंड का आता है। लेकिन साथ में हम यह प्रयास करना चाहते हैं कि माइंस और मिनरल के साथ साथ अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य की बात जब आए तो साथ में झारखंड का भी नाम आए। हम एक सिनर्जी की बात सोचते हैं, एक सहजीविता की बात सोचते हैं। माइंस और मिनरल राज्य के रेवेन्यू का, देश की तरक्की का एक आधार है। निश्चित रूप से वह तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हम साथ में यह भी कहते हैं कि झारखंड ही इकलौता ऐसा राज्य है जिसने माइनिंग के साथ एक हार्मोनी, एक सिनर्जी मेंटेन करते हुए माइनिंग टूरिज्म की परिकल्पना की है। और मैं आपको बड़े गौरवान्वित होकर यह कहता हूं कि शायद यह करने वाला झारखंड पहला राज्य होगा जिसने अपने माइंस के दरवाजे पर्यटकों के लिए खोले हैं, माइंस कंज्यूम करने वाली कंपनियों के अलावे। तो मैं निश्चित रूप से आपसे आग्रह जरूर करना चाहूँगा कि इस नेशनल कैपिटल में बैठकर हमारी बातें पूरे हिंदुस्तान तक जाएं और पूरे हिंदुस्तान के पर्यटकों को भी यह महसूस हो कि झारखंड ने अपने टूरिज्म के दरवाजे खोले हैं। बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा, मैं स्टीम गेस्ट के तमाम विचारों को भी सुन रहा था। निश्चित रूप से बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है। आपके सुझावों का मैं स्वागत करता हूं और हम लोग बड़ी गंभीरता से आपके सुझावों पर होमवर्क भी करेंगे और यह प्रयास भी करेंगे जो कि आपके द्वारा दिए गए उन सुझावों को अंगीकार आप साथ करते हुए हम कुछ बेहतर और करने की दिशा में बढ़ें। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे स्टेट के कुछ बच्चे भी यहाँ बैठे हैं जिनको झारखंड टूरिज्म ने पहली बार ऑन बोर्ड किया है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आज के दौर में इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब के रील्स और क्लिप्स के क्या मायने हैं। हम लोगों ने 110 लोगों को ऑन बोर्ड किया है और सोइती मैडम की उस बात से मैं बहुत इत्तेफाक भी रखता हूं कि बड़े आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किसी राज्य की प्रगति का परिचायक नहीं है। मानव जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन हम ला पाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक 5 स्टार होटल के स्थापना शायद 200 लोगों को रोजगार और कुछ लोगों को उस पर अपरोक्ष रूप से साधन दे सकती है, लेकिन अगर 100 होम स्टेज बनाने में हम लोग कामयाब रहे तो मेरा यह मानना है कि अगर फैमिली 5 की होगी तो 500 लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे और जीवन स्तर को अपने राज्य का ऊंचा करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठा पाएंगे। तो हम फिर आपको पुनः दोहरा कर यह कहते हैं कि हम लोगों की होम स्टे पॉलिसी बहुत ल्यूक्रेटिव होगी। हमारी होम स्टे पॉलिसी आने वाले दिनों में देश के अन्य राज्यों के तौर पर झारखंड को भी एक होम स्टे डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का काम करेगी। हम अपनी बात कहने के लिए विभिन्न जगहों पर कलकत्ता भी जाते हैं, दिल्ली आए हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा संभवतः अगली बार हम लोग अहमदाबाद भी होंगे और अहमदाबाद में भी अपनी बातों को कह रहे होंगे। रिलीजियस टूरिज्म के मायने बजाज साहब ने पूरी झारखंड की रूपरेखा खींच कर रख दी कि भगवान शंकर से लेकर माँ पार्वती तक से लेकर दुर्गा माँ के सिद्धपीठ से लेकर, लेकिन एक और विशेष चीज़ हमारे राज्य में है जिसका जिक्र मैं जरूर से करना चाहूँगा। जैन तीर्थंकरों के अधिसंख्य को मोक्ष पारसनाथ में प्राप्त हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा जैनियों का तीर्थ स्थल झारखंड के पारसनाथ में है।
तो मैं इन तमाम विशेषताओं के साथ महत्वपूर्ण यह जरूर कहना चाहूँगा कि अन्य राज्यों ने ये एफर्ट्स शायद हमसे पहले लिए होंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आधी कैबिनेट टूरिज्म की गंभीरता को समझते हुए आपके समक्ष चलकर आई है, हमने शायद थोड़ा विलंब से लिया होगा, लेकिन हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आधी कैबिनेट बाहें फैलाकर अपने निवेशकों से लेकर टूरिज्म एंथुसियास्ट का स्वागत करने के लिए बड़ी तत्पर है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारी यह बैठक, हमारा यह प्रयास, हमारा यह सम्मेलन इस दिशा में जो भी गतिरोध थे उनको तोड़ते हुए एक बार आपको झारखंड आने का जरूर अवसर प्रदान करेगी। आपकी जरूर इच्छा होगी और मैं जानता हूं कि झारखंड का जादू ऐसा ही है कि झारखंड से निकले लोग कहीं भी जाकर झारखंड का नाम ही रोशन करते हैं। मुझको भी बहुत सारे लोग मिले यहाँ और मैं पुनः उन तमाम लोगों की शुभकामनाओं का बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और चलते चलते हमारे सेक्रेटरी साहब ने निदा फाजली साहब का एक शेर पढ़ा, मैं थोड़ा सा करेक्शन उसमें कर दूं। निदा फाजली साहब से माफ़ी मांगते हुए उन्होंने पढ़ा कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो मैं किताबों के जगह एक शब्द मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहूँगा कि जिंदगी क्या है मोबाइल को हटा कर देखो। आप झारखंड आ जाओ, आपको प्रकृति भी दिखेगी, जिंदगी दिखेगी। निदा साहब से माफ़ी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय सुदेव कुमार सर। आपकी कोशिशें झारखंड वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर उभर कर आए, इन शानदार और ईमानदार कोशिशों के लिए विशेष आभार आपका। आपके समृद्ध विचारों के साथ ही टूरिज्म पर आधारित इस विशेष सत्र के अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। उपस्थित देवियों और सज्जनों, हमारा विश्वास है कि यहाँ से उठकर ये कदम कहीं थमेंगे नहीं। आप झारखंड सरकार के साथ हम कदम बनेंगे, हम मिलकर साथ बढ़ेंगे, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत आभार। माननीय मंत्री महोदय, डायरेक्टर टूरिज्म, सबकी ओर से विशेष आभार है। हमारे जो नेशनल मीडिया के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने विशेष जवाबदेही ली है, एक बार मीडिया के बंधुओं के लिए जरूर चाहूंगी तालियां होनी चाहिए कि आप हमारी झारखंड सरकार की शानदार कोशिशों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसका वाइड कवरेज देकर विशेष आभार माननीय मंत्री जी और पूरी सरकार की तरफ से। आपकी उपस्थिति, एक्सपर्ट्स के सुझाव, आपकी सहभागिता माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की सोच को आगे बढ़ाएगी। यकीनन आज